All right, so today we are going to finally introduce concept of electric field. Easy concept है, but you have to understand the way it should be understood. So I'll go through very basic of what is electric field. Electric field या electric field intensity भी बोल सकते हो इसको. The idea is pretty simple. So what we know so far is if you have any charge, let us say any charge Q1, इसके सराउंडिंग में अगर कोई और चार्ज आ गया, इसके नियर कोई और चार्ज आ गया, तो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस attractive or repulsive force depending on whether that charge Q2 is positive or negative. Okay, so we know that every electric charge exerts a force of attraction or repulsion on another charge, right? और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स है, मैंने सिर्फ चार्ज को कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू बोल दिया है यहाँ पे. ये जो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स है, इसका जो स्ट्रेंथ होगा, it decreases as you go away from charge. For example, what I am saying is कैपिटल Q जो है, ये जो चार्ज है इसको मैं बोलूंगा सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज क्यों? क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें Q दैट इज टेस्ट चार्ज, उसमें ये QT स्मॉल QT चार्ज है. तो QT will experience a repulsive or attractive force due to the presence of capital Q. And as I told you, आप इस QT चार्ज को कैपिटल Q चार्ज से जितना दूर ले जाओगे उतना फोर्स कम होते जाएगा, राइट? सो what we can say from this, does every charge has a space surrounding it in which if any other charge is brought, it will experience a attractive or repulsive force. This space surrounding an electric charge in which any other charge experiences a force is called as electric field of the charge. ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. हमारे पास एक चार्ज है, लेट अस से कैपिटल Q. ओके, what we know is every electric charge exerts a force on of attraction or repulsion on another charge, right? तो कैपिटल Q चार्ज किसी और चार्ज स्मॉल q पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. इट विल बी रिपल्सिव इफ बोथ आर लाइक चार्जेस, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, एंड द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इफ both are unlike charges, right? So every electric charge exerts a force of repulsion or attraction on another charge. और ये जो फोर्स है, this force decreases as you go away from the charge, right? तो कैपिटल Q चार्ज से अगर मैं स्मॉल q चार्ज को दूर लेके गया तो फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता है. दस हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस है जिस स्पेस में अगर दूसरा चार्ज आ गया तो दैट अनदर चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट? तो ये जो स्पेस है सराउंडिंग अ चार्ज इन विच another charge experiences a force, force can be attractive or repulsive, this space is called as electric field of a given charge, right? सिंपल सा आइडिया है. नाउ मैथमेटिकली अगर आप बोलोगे तो मैथमेटिकली ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल what we know is the force between these two charges separated by a distance r, let us say, is given by 1 by 4 pi epsilon 0 if these two charges are in space, of course, capital Q small q by r square r cap, where r cap is from source charge to test charge.
है ना। सोर्स चार्ज कौन सा है, सोर्स चार्ज क्यों बोल रहा हूँ, सोर्स चार्ज मतलब जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सोर्स चार्ज, राइट। ओके, सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज, तो the force is pointing towards the test charge, मतलब away from capital Q and towards small q. This is force. But mathematically, electric field E bar is defined as, what is the issue here? ठीक है, एक theoretical definition is okay, where you can say the space surrounding a charge in which if another charge is brought, it will experience a force. That space is called as electric field. ठीक है, but mathematically भी definition देना पड़ेगा. So how do we define electric field mathematically? It is extremely simple. So mathematical definition is extremely simple. So mathematically electric field मतलब the force experienced by a unit positive charge, मतलब ये जो स्मॉल q है इसको हमको यूनिट पॉजिटिव मतलब +1 कूलम करना पड़ेगा, राइट। तो +1 कूलम पे जितना भी फोर्स लगेगा एट दैट पॉइंट P इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो कैसे डिफाइन करोगे मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। बट फोर्स के डेफिनेशन में मैं देख रहा हूं हमारे पास एक कैपिटल Q चार्ज है, एक स्मॉल q चार्ज है, हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है। हो सकता है ना मेरे पास +1 कूलम का चार्ज नहीं है, तो फिर क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं करूंगा। तो वी डू अ स्मार्ट थिंग हियर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ठीक है नहीं है नहीं है यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकते हैं, राइट। तो मैं लिखता हूं E बार इक्वल टू F बार। लेकिन बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय +1 कूलम चार्ज, +1 कूलम नहीं था तो क्या था, स्मॉल q था, है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस फोर्स को स्मॉल q से डिवाइड कर दूंगा, राइट, सिंपल। मतलब मैंने क्या किया, जबरदस्ती +1 कूलम बनाया। कैसे जबरदस्ती किया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर r कैप, ये था फोर्स, उसको मैंने स्मॉल q से डिवाइड कर दिया तो कैंसल हो गया। मतलब फोर्सफुली आई हैव मेड दिस चार्ज स्मॉल q एज +1 कूलम। So electric field turns out to be 1/4 pi epsilon 0 capital Q by r square r cap, right? Okay. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से डिराइव हुआ और क्योंकि फोर्स ये वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। क्योंकि फोर्स जो है वो O पॉइंट से जहां पे कैपिटल Q चार्ज रखा गया था वहां से स्मॉल q मतलब P पॉइंट की डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी O से P की डायरेक्शन में है, मतलब इट इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट। So it is towards positive test charge electric field by definition, right? Okay, मैं रिपीट करूंगा पूरा, बट स्टिल आई वांट यू टू पे कंप्लीट अटेंशन। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, क्यों होता है समझेगा आगे। बाय द वे, वो जब हम लेंगे तब देखेंगे। बाय द वे, मेरे पास अगर एक कैपिटल Q चार्ज है, इसको मैं हमेशा सोर्स चार्ज बोलूंगा। व्हाई सोर्स चार्ज, क्योंकि ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दूसरा चार्ज आएगा तो दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब सोर्स कौन हुआ, कैपिटल Q, इसलिए इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। अगर मैं सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहा हूं तो एट पॉइंट P, राइट, आई विल गेट सम वैल्यू, लेट अस से E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इज अवे, राइट। मेरे पास दूसरा पॉइंट है, लेट अस से आई हैव दिस पॉइंट व्हिच इज कैपिटल R, और ये कैपिटल R जो है ये भी स्मॉल r डिस्टेंस पे है, राइट। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा अवे। फिर मेरे पास और एक पॉइंट है,
somewhere over here, let us say some other point S, ये भी r डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड of a point charge at equal distances, basically that makes a sphere. So electric field on this spherical surface due to point charge has a constant value, and that constant value is E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 capital Q by R square। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि Q भी कांस्टेंट है और R भी हर एक डायरेक्शन में हमने R डिस्टेंस दिया है, वो भी कांस्टेंट है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ऑन अ स्फेरिकल सरफेस इज सेम, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज at point P it is directed in this direction, and at point R it is here, and at point S it is here। कोई और पॉइंट लूंगा तो it will be again away। So direction of electric field due to a point charge is radially outwards, correct? Right? Simple है। Then we want to know what are dimensions of electric field। So I can write down mod of E is equal to mod of F upon Q। We already know dimensions of force M1 L1 T minus 2, and we know what are dimensions of charge। What is charge? Current into time। If you remember, current is charge upon time, so charge is current into time, मतलब ampere A into T। तो A into T, तो इसको जब सब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट M1 L1 T minus 3 and A minus 1। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशंस। अगर आपको यूनिट्स चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम, ये है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो आइडिया इज वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, ओनली थिंग इज यू नीड टू रिमेंबर थिंग्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बिकॉज I want you to remember all of this in a simple language। Good। और आगे काम में आएगा, राइट? तो थोड़ा सा नोटेशंस में वेरी करूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, बाद में हम नॉर्मल नोटेशंस पे आ जाएंगे। तो जो चार्ज पहले से प्रेजेंट था उसको मैं बोलूंगा सोर्स चार्ज QS। क्यों सोर्स? क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड की बात हो रही है, दिस चार्ज वाज ऑलरेडी प्रेजेंट। अब इस सोर्स चार्ज QS के सराउंडिंग में एक दूसरा चार्ज आ गया QT, टेस्ट चार्ज, राइट? तो टेस्ट चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ फील्ड ऑफ QS, राइट? मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट वी नो इज every electric charge exerts a force of attraction or repulsion on another charge, right? और ये जो force of attraction या repulsion, इसको कोलम्बियन फोर्स बोलते हैं। this कोलम्बियन फोर्स basically varies with distance। जितना आप सोर्स चार्ज से दूर जाओगे उतना फोर्स कम होता जाएगा, राइट? thus what we can conclude, हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं thus every electric charge has a space surrounding it in which if you bring another charge जैसे QT यहाँ पे, that charge QT will experience a force। So this space surrounding a charge in which any other charge experiences a force is called as electric field of that charge। कौन सा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड? सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? गुड। ये तो हो गया थियोरेटिकल डेफिनेशन। हाउ डू आई डिफाइन मैथमेटिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हम क्या करते हैं टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली? हम टेस्ट चार्ज को +1 कूलम मान लेते हैं। हम बोलते हैं कि सोर्स चार्ज O पॉइंट मतलब ओरिजिन पे है और टेस्ट चार्ज P पॉइंट पे है, राइट? गुड। देन
ये जो +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एट दैट पॉइंट P, the force experienced by unit positive charge at that point is the electric field of the source charge. Correct? मान लो मेरे पास +1 कूलम चार्ज है ही नहीं, आई डोंट हैव +1 कूलम चार्ज, नहीं है मेरे पास 2 कूलम है, 2.5 है, 10 है, 10.5 है, सब कुछ है, 1 कूलम नहीं है। तो फिर क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कैसे? हम बोलेंगे ठीक है, नहीं है, डजंट मैटर, बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली कैलकुलेट फोर्स। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस if the separation is r and r cap is a unit vector from source charge to test charge. The force between these two charges, if kept in vacuum, is 1 by 4 pi epsilon 0 source charge into test charge upon r square into r cap. Right? Good. हमें फोर्स नहीं चाहिए था, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज की वैल्यू +1 कूलम होनी चाहिए थी और हमारे पास +1 कूलम नहीं है। तो व्हाट वी डिड इज, हमने ऐसा किया, हमने फोर्स लिया, उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया। राइट? करेक्ट? तो डिवाइड कर दिया तो बचेगा 1 by 4 pi epsilon 0 QS by r square r cap, क्योंकि QT हो गया कैंसिल। राइट? तो मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब मैं 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाता हूँ, जेडब्ल्यू नीट सीईटी क्वेश्चन लेता हूँ, तो सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, कौन से चार्ज का फील्ड, कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किसकी फील्ड की बात हो रही है, कौन सा डायरेक्शन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। राइट? सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, आपने सुना ही होगा ये। तो सॉल्यूशन ये है कि राइट फ्रॉम बेसिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। और बेसिक ये है दैट जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सोर्स चार्ज का होता है, टेस्ट का नहीं। टेस्ट तो हमने रखा, टेस्ट करने के लिए रखा। राइट? सो वन थिंग यू हैव लर्नड दैट electric field E of source charge is force between source and test divided by test charge, or electric field of source charge is 1 by 4 pi epsilon 0 सोर्स चार्ज अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था? सोर्स चार्ज का था। राइट? करेक्ट। तो चार्ज यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? सोर्स आना चाहिए, टेस्ट नहीं। करेक्ट? Or you can say from here, force experienced by any test charge in electric field of a source charge is Q2 into ES bar. Right? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12th में समझेगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस, force between a source charge and test charge is test charge into electric field of source charge। ये समझ में आ गया तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नथिंग, बहुत इजी बन जाता है। राइट? तो दैट इज द आइडिया, यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैं ये QS और QT ही डिनोट करता हूं इसको, बिकॉज आई वांट थिंग्स टू बी क्लियर। राइट? देन अब ये क्वेश्चन आया, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूं, मतलब इफ आई डोंट कंसीडर डायरेक्शन फॉर अ व्हाइल, फिलहाल डायरेक्शन भूल जाएंगे, तो व्हाट आई नोटिस इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और उस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हम लोग फील्ड का वैल्यू देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा सोर्स चार्ज यहाँ रखा है, मैं हर एक डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करूं, राइट, तो सेम आएगा। So if you measure electric field at equal distances in all direction, it will be same and you will end up getting a sphere, right? मतलब electric field due to a point charge on a spherical surface has same value, constant value, but अगर मैं डायरेक्शन कंसीडर करूंगा तो इट इज ऑलवेज अवे। और डायरेक्शन अवे क्यों होता है? बिकॉज यू नो सोर्स और टेस्ट दोनों पॉजिटिव थे और सोर्स
charge set test charge, this is the direction of force, so this is the direction of force basically, away, right? और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बना है? फोर्स से बना है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट? जब फोर्स ही आउटवर्ड्स था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड्स होगा फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में मेंशन नहीं किया जाता बिकॉज हमने सोर्स चार्ज ही पॉजिटिव लिया। अगर मैं सोर्स चार्ज नेगेटिव लेता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इफ आई से माइनस क्यू एस, खत्म, बिकॉज इट विल बी इनवर्ड्स नाउ, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब टूवर्ड्स सेंटर, राइट? सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इनिशियली जब हम एक एक चीज डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस की बात करते हैं। और एक क्वेश्चन आता है, sometimes students say why not negative negative, why not one charge negative other positive? Yes, you can take negative negative, you can take one negative one positive, you can take positive positive as well, but remember जब मैं नेगेटिव नेगेटिव लिखता हूं तो मुझे हर जगह पे फिर माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, तो इनिशियली हम लोग कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना, फ्रॉम समवेयर वी हैव टू स्टार्ट। हम बोलते हैं चलो पॉजिटिव है मान लो, राइट? सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, अज्यूम। इससे एक चीज सिंप्लीफाई हो गई कि नेगेटिव कहीं पे भी नहीं आया। दूसरा, दोनों सोर्स और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेने की वजह से डायरेक्शन इजीली समझ में आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है, जैसे लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो, ओके? तो this was sufficient for electric field. Let us quickly write down again, and I will, while making notes, I'll explain you again what is electric field. Okay, so कोई भी चीज चालू करने से पहले you must be giving little bit background of what you want to say. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम क्यों कर रहे हैं, little bit of background you must be giving, okay? So just a minute. Right. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि हमको पता है that every charge will exert a force on another charge in its surrounding. So we know that every electric charge exerts a force of attraction or repulsion, sorry, exerts a force of attraction, force of attraction or repulsion on another charge, right? Then this Coulombian force, because this force is derived with the help of Coulomb's law, तो इसको बोलते हैं Coulombian force. This Coulombian force of attraction or repulsion decreases with distance, so it goes on decreasing away from the charge in all directions, right? Okay, then thus what we can say is, thus every electric charge has a space surrounding it in which if another charge is brought, it will
experience of force, right? So this brings us to the point where we can actually define electric field theoretically. तो कैसे define करोगे? Easy है. The space surrounding an electric charge in which any other electric charge experiences a force is called as electric field of the charge. Electric field of the charge. Right. Good. तो ये तो हो गया आपका theoretical definition. We need to define mathematically as well. So mathematically, electric field, again mathematically, electric field is defined as, and you already know, मैंने बताया है, mathematically electric field is defined as the force experienced, the electric field of a point charge, ये important है, the electric field of a point charge, let us say capital Q, is defined as the force experienced by a unit positive charge, unit positive मतलब +1 कूलम का charge at that point. Okay, simple. So it is extremely simple thing. So mathematically electric field is nothing but force experienced by a unit positive charge at that point. Okay, then अब हमको एक इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा. So let us say, let us take two charges let capital Q and small q be the two charges separated by a small distance r. The force between these two point charges is given by, okay, so we already know, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, एक है प्लस q, एक है स्मॉल q, and the separation between these two point charges is r, and the direction of the force is from capital Q to small q, right? So the force F bar is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. Of course, if they are kept in vacuum, capital Q small q by r square r cap, where r cap is a unit vector directed from source charge capital Q to test charge small q. Okay, right, easy. Then therefore, by definition of electric field, by
mathematical definition of electric field, what we can write is electric field E bar is equal to F bar by Q, राइट, क्योंकि हमको टेस्ट चार्ज को स्मॉल q को 1 कूलम करना है, इसलिए हमने फोर्स को डिवाइड कर दिया किससे, स्मॉल q से. सो यू विल गेट दिस टू बी 1 by 4 pi epsilon 0 capital Q by r square into r cap, right? So you have an equation for electric field now, but we need to also specify direction. Okay, so direction is also important here. So since the Coulomb force is a vector, the electric field of a charge is also a vector and is directed along the direction of the Coulomb force right, experienced by a test charge, of course, experienced by a test charge, right? Now up, what we know is इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस पे, और तो ये तो हर एक डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, राइट? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r from a point charge capital Q is same at all points on the surface of a sphere, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, of radius r as shown in figure I will be drawing in a while, right? और डायरेक्शन मैंने आपको बताया है, it is always directed outwards, so its direction is along the radius of the sphere pointing away from center, pointing away from its center. Of course, if the charge is positive, negative के लिए towards होता है, if the charge is positive, ये important है. The moment you write that it is pointing away from the center, you need to specify that only for positive charge. Okay, good. So let us draw diagram, easy है. So what we will do is we will take a sphere, put a charge capital Q at its center, and electric field is directed outwards, and the magnitude of electric field E is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square. This is magnitude, right? Now SI unit you can just write from E is equal to F by Q. So SI unit of electric field is
फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम. ओके, मोस्टली वी यूज वोल्ट पर मीटर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस v by d, तो मोस्टली वी यूज दैट, बट एनीवेज इट्स न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों में से एक यूज होगा, इजी है, राइट. डायमेंशनल फॉर्मूला इज, dimensional formula for electric field is, formula for E is, easy है. So electric field is nothing but force upon charge, and force is m1 l1 t minus 2. Charge is a1 and t1 क्योंकि charge is current into time. So this is equal to m1 l1 a minus 1 t minus 3. So these are the dimensions of electric field, right? So I hope it is clear. डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, एवरीथिंग इज सो सिंपल. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट अ पॉइंट. तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डिफाइन करना है, बस हम उस पॉइंट पे जो चार्ज था उसको +1 कूलम कर देते हैं, एंड देन यू हैव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. So we are at a point now where we have sufficient theory plus formulas to solve some examples, right? Because we have changed our pattern from last 2-3 chapters. हम थोड़ा सा theory लेके example solve करते हैं. So we have sufficient formulas and theory to have few numericals now. So starting with 10.1, सबसे easy numerical है. How much positive and negative charge is present in 1 gram of water? How many electrons are present in it? Given molecular mass of water is 18 gram. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड यू नो बेसिक्स. 1 ग्राम ऑफ वाटर, पहले तो पता होना चाहिए वाटर मतलब क्या, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. इसमें कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है. तो व्हाट यू शुड नो कि अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम है, इसका मतलब ये होता है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ये बताना चाहिए, ऑफ मॉलिक्यूल्स हियर, राइट. सो molecular mass of water is 18 gram, which means 18 gram of water contains Avogadro numbers of molecules. Number of molecules, which means you already know this. What does that mean? That means 18 gram is equal to 6.02 into 10 power 23 number of molecules, right? Right. Which means 1 gram of water has 6.02 into 10 power 23 by 18 number of molecule, correct. Okay, तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले, correct. So this is 1 gram of water has this many number. इक्वल टू नहीं लिख सकता क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राम है, राइट हैंड साइड पे नंबर है. ओके, 18 ग्राम ऑफ वाटर मतलब H2O. अब
हमको ये तो पता लग गया कि 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, राइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट each molecule of water मतलब H2O has 2 hydrogen and 1 oxygen, right? Okay, so each molecule of water has 2 H atoms and 1 oxygen atom. Therefore, what you can say is how many number of electrons are there, ये भी देखना पड़ेगा. In each hydrogen atom you have 1 proton and 1 electron. There is 1 proton and 1 electron, and in each oxygen atom, or not each, एक ही है तो फिर, and in oxygen atom you must know there are 8 protons and 8 electrons. There are 8 protons and 8 electrons. Therefore, each H2O molecule has हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक और एक दो हाइड्रोजन है ना, एंड ऑक्सीजन में 8. सो ईच H2O has 10 protons and 10 electrons. राइट, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है आपके पास? 6.02 into 10 power 23 by 18, और हर एक में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स है, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो वो भी देखना पड़ेगा. करेक्ट. सो total number of protons or electrons in 1 gram of water is, so total number of protons or electrons in 1 gram of water is, let me denote it by capital N. कितना आएगा? 6.02 into 10 power 23 by 18. ये 1 ग्राम में नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स है, और हर एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने ऑब्लिक किया है वहां पे. तो व्हाट यू हैव इज 6.02 by 18 into 10 power 24 protons or electrons in, not or, and 24 electrons in 1 ग्राम ऑफ वाटर. तो टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. क्या पूछा है? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट? तो ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मिल गया. फिर हर एक प्रोटॉन पे ई चार्ज है, और ई कितना? 1.6 into 10 power minus 13. Okay, so each proton oblique electron has E, that is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb charge. Okay, therefore total positive oblique negative charge in
1 gram of H2O is, क्या करोगे आप, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है उसको E से मल्टीप्लाई कर दोगे, इजी। तो total charge capital Q is 6.02 upon 18 into 10 power 24 into E, that is 6.02 by 18 into 10 power 24, 10 power 24 into E is 1.6 into 10 power minus 19। इसको सॉल्व करो। आफ्टर सॉल्विंग 1/3 1.6 by 3 5 पॉइंट समथिंग आएगा ये, क्योंकि इसको 1/3 कर दिया, ये 16/3 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0.5 समथिंग है वो। तो उसको एडजस्ट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद 5.35 और पावर में बचेगा 10 पावर 4 कूलम, 10 पावर 4 कूलम। सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इतना ही नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट। क्योंकि आपको पता है जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। मैं वापस समझाता हूँ ये क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट इफ यू नो बेसिक्स, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकते उसको हम लोग। हमें बोला है 1 ग्राम वाटर में कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमको बताया गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम का मतलब होता है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O हैज 6.02 into 10 power 23 number of molecules। मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर हैज 6.02 into 10 power 23 by 18 number of molecule। मतलब 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गए, पहले तो ये पता करना पड़ेगा। अब हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और हर एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक H2O मॉलिक्यूल में टोटल 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 ग्राम ऑफ H2O में जहां पे 6/18 into 10 power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, into 10 करना पड़ेगा टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स into number of protons in each molecule, करेक्ट। फिर हमको पूछा है टोटल चार्ज कितना, तो आपके पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स into नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स into चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज ऑन द नेक्स्ट पेज। सो हमने क्या किया, हमने वही किया, नंबर ऑफ molecules into number of protons or electrons in each molecule multiplied by charge on each proton or electron. So total positive and negative charge turns out to be 5.35 into 10 power 4 coulomb. गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट इज सिंपल, राइट, प्रोवाइडेड यू नो बेसिक्स। देन नेक्स्ट, charge on an electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. How many electrons are required to accumulate a charge of 1 coulomb? Easy है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10 power minus 19 coulomb चार्ज है, तो 1 coulomb चार्ज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? What do you write? What you can write from here is 1 electron is having 1.6 into 10 power minus 19 coulomb। मतलब I can write 1 coulomb is equal to 1 upon 1.6 into 10 power minus 19 electrons, right? कुछ नहीं किया, इस फैक्टर को सिर्फ यहाँ पे लाके डिवाइड किया, और कुछ नहीं लिया, और सिर्फ अदर वे राउंड लिखा है मैंने, इजी है। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आई विल राइट इट दिस वे, I will say
1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम मतलब 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। और इसलिए मैंने बताया था बेसिक कैलकुलेशंस। मैंने बताया था 1/1.6 को बिना लॉग टेबल के, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कैसे करते हैं। इसको लिख देता हूँ 16 10 पावर माइनस 20। और मैंने आपको ये भी बताया था, आई इवन रिमेम्बर माई वर्ड्स, मैंने आपको ये बताया था कि एक कैडबरी है, उसके दो पार्ट कर दिए, हाफ एंड हाफ दो लोगों को मिल गया। हमारे पास 4 फ्रेंड आ गए, तो हर एक को 1/4 मतलब 0.25 मतलब हाफ का हाफ मतलब 0.5 का हाफ। फिर 1/8 कर दिया, 8 लोग हैं अगर हम, तो 1/4 का हाफ, बिकॉज 1/8 इज 1/4/2, 1/4 का हाफ मतलब 0.25 का हाफ, मतलब आपको पता होना चाहिए, दिस इज 0.125। फिर 1/16 मतलब बेसिकली 1/8 का हाफ मतलब 0.125 का हाफ मतलब 0.0625 होता है। तो अगर आपको कैलकुलेशंस इतना फास्ट आते हैं तो यू will basically immediately realize that this is 1/16 is 0.0625 into 10 power minus 20, ऊपर गया तो 10 power plus 20। तो ये मैं अगर मैं सिर्फ डेसिमल एडजस्ट करता हूँ तो 1 कूलम ऑफ चार्ज मस्ट कंटेन 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एक कूलम के चार्ज में 6.25 into 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, and this is absolutely required for you to do calculations at this speed. Okay, then next example, ये example जेई और नीट दोनों में एक एक बार पूछा गया है। Calculate and compare electrostatic and gravitational forces between two protons which are 10 power minus 15 apart। मतलब दो प्रोटॉन्स है और दोनों का डिस्टेंस आपको दिया है 10 पावर माइनस 15 मीटर। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दी है 6.674 इंटू 10 पावर माइनस 11। मास ऑन ईच प्रोटॉन दिया है, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है लिख देते हैं, मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑन ईच प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। आपको बोला है आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट एंड कंपेयर, मतलब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये निकालना है फर्स्ट, दैट इज Q1 Q2 बाय, आपको पता है, यू सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फॉर्मूला मैं बाद में लिख दूंगा। यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू protons, then you're supposed to find out gravitational force between two protons, calculate and compare, मतलब you are supposed to take ratio of these two। तो रेशो पूछा गया है जेडबलई और नीट में एक एक बार, if I am not wrong। Formula is pretty simple। Electrostatic force between two protons Fe is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पहले प्रोटॉन पे चार्ज E, दूसरे प्रोटॉन पे चार्ज E, तो E स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज G m1 m2, पहले प्रोटॉन पे मास mp, दूसरे पे भी mp, उसका स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इट इज वेरी सिंपल। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑल राइट, तो फर्स्ट केस Fe फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मैंने बताई थी कल 9 इंटू 10 पावर 9। तो पहले एक काम करते हैं, आई विल जस्ट राइट डाउन फॉर्मूला फर्स्ट सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तो दिस इज 9 इंटू 10 पावर 9। E, वैल्यू ऑफ E
is 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, उसका स्क्वायर करेंगे, 1.6 into 10 power minus 19 कूलम का स्क्वायर करोगे, डिस्टेंस 10 power minus 15 दिया है, उसका स्क्वायर करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, that means I am just putting down final values of calculations over here, and that is 2.3 into 10 power 2 न्यूटन ऐसा फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक. This is electrostatic force between two protons, and definitely for sure the force is repulsive, of course, because we are talking about two positive charges, so force is repulsive. Then next thing is gravitational force. Fg is g मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि m1 into m2 होता है और दोनों का मास सेम है, तो g की वैल्यू आपके पास है 6.674 into 10 power minus 11. मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आपके पास है 1.6 into 10 power minus 27. इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होगा, ओके गुड. तो इसका स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस 10 पावर माइनस 15 है, इसका स्क्वायर. यू हैव टू सॉल्व दिस. I am writing down final calculations, that is 1.86 into 10 power minus 34 Newton, right? And then you have to compare, that means you have to take ratio of electrostatic force to that of gravitational force. Solve karo. I am leaving it onto you calculation part. So finally it will be 1.23 into 10 power नीचे 34 ऊपर 236 न्यूटन. न्यूटन is a ratio, dimensionless, right? So that's it. This is how you are going to solve this question. अच्छा है, easy है, simple है, और ये exam में आ चुका है. There's nothing, right? So we will stop here and go through what I have taught you today. Numerical so easy ही है, and I have taught you also what is electric field. Go through it. If you find any problem, do let me know tomorrow at 4:30. I will revise and I log in at 4:30 to solve your queries, right? So please let me know if at all there is some query. We will stop here and we will meet again for JEE session.